ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। 1970 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। इस युद्ध ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਲਿਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ всіх і майже все, що здатне з нами воювати. Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очами усього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою або третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні Сили України, те, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище російської. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та у мудрості цілком очевидна. Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв'ю наголошую на простій істині. Це не справедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і необхідні зараз, то це їхній, в першу чергу, моральний обов'язок допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців. Якби ми отримали у перший же тиждень війни те, що отримуємо зараз, користь для України і для свободи в Європі була б більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців. Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, в Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважаються для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, руйнувати цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього усі види озброєнь, і в тому числі заборонені міжнародними конвенціями, це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла. А коли ще запрацює спеціальний трибунал для засудження усіх винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме в будь-якій впевненій країні тільки одне – однозначний осуд від усіх порядних людей, однозначне небажання співпрацювати. Ситуація в Маріуполі залишається без змін, максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори і врятувати людей, наших людей, місцевих мешканців, які опинились в руках окупантів. Намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію підконтрольну Росії, невідома.
На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу усім, хто був чи може бути пов'язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля у Москві, мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватись з Російською Федерацією. На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла. Українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність, підтримують нашу національну державність. І я вдячний усім мешканцям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад, міст за цю чітку українську позицію. Жодної співпраці з окупантами, жодної підтримки колаборантам. Чим більше принциповими ми будемо, чим більше принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя. Провів сьогодні нараду з представниками Верховної Ради, обговорили план парламентської роботи, поговорили важливі для держави проекти рішень, які потрібно ухвалити найближчим часом. Зокрема, депутатам запропоновано підтримати технічне рішення про продовження воєнного стану. Це необхідно для юридичного забезпечення оборони нашої держави та стабільної роботи всіх структур. Також обговорили законопроект щодо процедури розміщення потужностей тих підприємств, які були евакуйовані із зони бойових дій. Законопроект зі змінами до Кримінального процесуального кодексу України необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Законопроект щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях. Розмова була предметною. Я сподіваюся, що депутати достатньо швидко опрацюють ці законопроекти. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Проінформував його про поточну ситуацію в районах бойових дій і особливо детально щодо Донбасу. Подякував за вагому підтримку для України. Скоординували подальші кроки, які необхідно, щоб захистити нашу державу і свободу в Європі. Домовились про більше постачання важких озброєнь, зокрема бронетехніки. Також говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України. Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась в європейську інтеграцію. Зараз, під час війни, цей рух та його швидкість також є елементами захисту нашої держави, збереження свободи для нашого народу. Все більше і більше глобальних компаній заявляють про зупинку роботи в Росії. Сьогодні до сотень інших таких крупних компаній приєдналася німецька компанія Henkel. Хочу підкреслити, що це неминуче будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення і залишити Росію. Зараз російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею, будь-яка підтримка для неї означатимуть співучасть у масових вбивствах. Співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності і геноцидом. Перед записом звернення я підписав вже традиційний указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців ЗСУ. Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищають Маріуполь. Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і Азову, і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям правого сектора, і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям. Вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя, всій нашій державі і народу України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Слава Україні! ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਇਸ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਗੀਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ कुछ खास पल। पहली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं हमारे शानदार स्कूल, जहां नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहां पुरानी हो जा रही हैं उसको नया शानदार बिल्डिंग में बदला जा रहा है। नया आर्किटेक्चर, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर दिखने वाले स्कूल। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। अगर खाली स्कूल का देखें तो 14 साल बच्चे की जिंदगी से ले लेते हो शुरुआती, और स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला दें तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। शुरुआती महत्वपूर्ण 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। इरादा क्या है, चाहते क्या हो? पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। इस पढ़ाने का इरादा क्या है, पढ़ाने का मकसद क्या है, पढ़ाने के पीछे संकल्प क्या है? आज हम अपने अपने शब्दों में उस बात को कहते रहे हैं। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी ली, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, उससे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली। 68 पन्ने की नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कहने की कोशिश की है वो हमने इस गाने में कह दी। इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। अच्छी बिल्डिंग बनवाना भी इरादा है, अच्छे नंबर लेके आना भी इरादा है, अच्छी डिग्रियां देना भी इरादा है, अच्छी नौकरियां देना भी इरादा है, लेकिन इरादा इससे कहीं बड़ा है, इरादा इससे कहीं ऊपर है। इस गीत के एक एक शब्द में वो बात आपके सामने आज रखी गई है। मैं इसके लिए पूरी की पूरी टीम को बधाई देता हूं और ये भी समझता हूं कि इस गीत को हम सब लोग केवल एक रिचुअल के रूप में नहीं लेंगे, एक सरकारी कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि रोज हर सुबह बच्चा और अध्यापक उठ के इस गीत को एक बार सुन लेंगे तो उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो ये स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल से जो होमवर्क मिला है, पढ़ने का काम मुझको मिला है, उसके पीछे इरादा क्या है। हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा परिवार से लेके समाज से लेके देश तक हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां कोई लफंगई ना हो, गुंडई ना हो, कोई महिलाओं की बेइज्जती ना करता हो, आपस में ना लड़ते हो, बल्कि सब प्रेम से रह के एक दूसरे का साथ देके एक देश के रूप में, एक राष्ट्रीय टीम के रूप में खड़े हों और ज्ञान और विज्ञान में इतनी तरक्की करें कि सारी दुनिया कहे भारत के लोगों सलाम है आपको। इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में, अपने आसपास रहने वाले लोगों में, जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे, उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जात पात के आधार पर यह लगता है कि ये छोटी जाति का है या मैं छोटी जाति का हूं, ये बड़ी जाति का है, ये मैं बड़ी जाति का हूं, अगर जाति का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या। मैं बात स्पेसिफिक होकर कहना चाहता हूं, लड़कों को खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, इतने सारे लड़के बैठे हैं स्टूडेंट्स, कि माँ होती है, बहन होती है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है, कहीं काम कर रहे होते हैं, अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके ऊपर कुछ गलत सोचते हैं या उसको कुछ गलत कहते हैं तो फिर ये पढ़ा ही क्या। इसीलिए इस गाने में कहा है कि जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ा ही क्या। इंसान में अगर इंसान को देख ना पाए तो वो पढ़ा ही क्या। हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है हमारे बीच, आखिर कौन नफरत हो रहा है, कलम की अब लड़ाई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस जमाने को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो रोज सड़कों पे गुंडई के वीडियो देखते हो ना, दिखते हैं ना, डर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया। ये जो कुछ लोग
हमारे देश को लफंगा और गुंडों का देश बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए इस गाने के शुरू में एक लाइन कही गई है, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई लड़वा न पाए। 20 साल 12 साल 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलेज की डिग्री करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मूर्खतापूर्ण बात पे लड़वा दे तो फिर हम पढ़े लिखे क्या। ये जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं, गुंडे घूमते हैं आजकल, कोई किसी के घर में घुस जाता है, कोई किसी के दुकान में घुस जाता है, 50 लोग खड़े होकर सड़क पे गुंडाई करने लगते हैं। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए, हमको पढ़े लिखे लोगों का देश चाहिए, हमको अपने पढ़े लिखे लोगों का समाज चाहिए, और जो खड़े होके कह सकें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लफंगाई नहीं करेंगे, हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हमको ऐसा देश, ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए ये गाना हमारा संकल्प है, हमारा इरादा है। पढ़ाएंगे, इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਨਾ ਟੇਕਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫालतू ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫालतू ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ। 1970 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜੇ ਗਏ 63 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਗਏ 63 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री मुकुल सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज एवं राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री वीके सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, 63 बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में
अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नीस 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां के वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे।
लेकिन भारत ने दो दो हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। कैसे एक एक मानवता की रक्षा करनी है और वह कार्य कैसे भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए है, लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ। भाइयों बहनों, जब 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था, उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति किस मजबूती से कार्य की, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको चिन्हित किया और फिर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकती थी वहां मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 1,08,000 की संख्या में केवल मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्ध करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है, जिसमें आज 63 परिवार ये बांग्लादेशी हिंदू हैं जिन्हें 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे, भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था। लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सरकार के पास सदैव जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्यों नहीं मुसहर जाति के लोगों ने उन्होंने कभी कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया? बनटांगिया गांव के लोग अनाथ क्यों बन गए थे? थारू है, कोल है, अन्य जो जातियां थी, इनके बारे में वे संवेदनहीन क्यों बनी रही? लेकिन सरकार जब 2017 में आई, मेरे सभी सहयोगियों ने मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया, आज हम बनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल करके पहली बार विधानसभा चुनाव में, आजादी के बाद के किसी चुनाव में, उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। आजादी के बाद 70 वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था। आज हर एक के पास पक्के मकान हैं। और मैं राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा, जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं, इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें। व्यवस्थित रूप से एक आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है। उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो, और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाओं के हाथों को भी और पुरुषों को भी काम मिल सके, वे अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। एक बड़ी उपलब्धि होगी
कि 1970 से लेकर के 2022 तक 52 वर्षों तक जिन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया जा सका, उन्हें अब सरकार व्यवस्थित रूप से उनके पुनर्वास की व्यवस्था को आगे बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे लेके जा रही है। महिलाओं का स्वयंसेवी समूह बने, पुरुषों के लिए वहां पर पशुपालन का कार्य हो, इनके बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हो सकते हैं, इनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम हो सकते हैं, कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था वहां पर हो सकती है। ढेर सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से हम इन सब को जोड़ करके उसे एक आदर्श गांव के रूप में, स्मार्ट विलेज के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जब ये नए सिरे से कार्य आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम इन सभी परिवारों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोगों ने ये कार्य यहां पर प्रारंभ किया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जो 42,194 मुसहर परिवारों को एक यानी आवासीय पट्टा और आवास उपलब्ध करवाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। बनटांगिया गांव के 4,822 कुष्ठ रोगियों को 3,686, दैवीय आपदा से, बाढ़ है, अग्निकांड से जो लोग चपेटे में आ जाते हैं, उनकी झोपड़ी जल जाती थी, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता था, ऐसे 36,307 परिवारों को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाया है। कालाजार से जो परिवार प्रभावित होते थे और उन परिवारों में अकाल मौत होती थी, 224 ऐसे परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाया गया। इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 601 परिवारों को भी इस सुविधा उपलब्ध करवाई गई। थारू जनजाति से जुड़े हुए 1,526 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई। कोल जाति के 13,102 परिवारों को यह सुविधा अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। सहरिया जो बुंदेलखंड में ललितपुर और झांसी आदि क्षेत्रों में निवास करती है, एकदम खानाबदोश जैसी जीवन यापन करने वाली उन जातियों के लिए भी 5,611 परिवार हम लोगों ने उपलब्ध कर को एक आवासीय सुविधा उन्हें भी उपलब्ध करवाया है। और चेरो जनजाति से जुड़े हुए 559 परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का लाभ हम जो आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत हम वहां पे एक आदर्श गांव के रूप में इन्हें वहां पर स्थापित करने, वहां बागवानी के लिए, वहां पर सब्जी की खेती के लिए, वहां पर अन्य यानी दुग्ध उत्पादन के लिए या बकरी पालन में या कुक्कुट पालन में किसी भी अन्य कार्य के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी और आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने में इन लोगों को न केवल ये लोग सफल होंगे, उससे आगे बढ़ाने में इन्हें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि 38 वर्षों के बाद दर दर की ठोकर खाने के बाद इन्हें आज आवासीय पट्टा सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए मैं एक बार फिर से राजस्व विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इन सभी 63 परिवारों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब कहां बांग्लादेश से आते आते हस्तिनापुर में गए, हस्तिनापुर से आते आते अब कानपुर देहात में आप लोग आगे अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका परिवार वहां पे फले फूले, इस भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पीएम मोदी ने गुजरात ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਨਾਸਕੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਓਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਡੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ પ્રોજેક્ટ है। મજામાં હા, હવે જરા તમારી ક્ષમા માંગીને શરૂઆતમાં થોડું મારે હિન્દીમાં બોલવું પડશે। બાબા બન્યા है तो हिंदी बोलना पड़ेगा ना।
કારણ કે આ મીડિયાવાળા મિત્રોની વિનંતી હતી કે સાહેબ હિન્દીમાં બોલો તો સારું. તો મને થયું કે બધું તો નહીં પણ થોડું ઘણું જરા એમને હાચવી લઈએ. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र सिंह पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री भाई जगदीश पंचाल, इसी धरती के संतान श्री कीर्ति सिंह वाघेला, श्री गजेंद्र सिंह परमार, सांसदगण श्री परबत भाई, भरत सिंह डाभी, दिनेश भाई अनावड़िया, बनास डेयरी के चेयरमैन, ऊर्जावान मेरे साथी भाई शंकर चौधरी, अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, मां नरेश्वरी और मां अंबाजी की इस पावन धरती को मैं शत शत नमन करता हूं. आप सभी को भी मेरा प्रणाम. शायद जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया होगा कि एक साथ 1.5-2 लाख माताएं बहनें आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं. और जब आप ओवारना ले रही थी तब मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पाता था. आपके आशीर्वाद, मां जगदम्बा की भूमि की माताओं के आशीर्वाद मेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है, अनमोल शक्ति का केंद्र है, अनमोल ऊर्जा का केंद्र है. मैं बनास की सभी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. भाइयों और बहनों, बीते 1-2 घंटे में मैं यहां अलग अलग जगहों पर गया हूं. डेयरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाभार्थी पशुपालक बहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई है. ये जो नया संकुल बना है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भी विजिट करने का अवसर मुझे मिला. इस पूरे समय के दौरान जो कुछ भी मैंने देखा, जो चर्चा हुई, जो जानकारियां मुझे दी गई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं. और मैं डेयरी के सभी साथियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं. भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है. कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था. मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है. मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं. और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं. आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है. भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं,
वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। इससे आलू किसानों की करोड़ों रुपए कमाई का एक नया क्षेत्र खुल गया है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। इसको भी बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि बनासकांठा की एक और ताकत यहां की मूंगफली और सरसों को लेकर भी डेयरी ने बड़ी शानदार योजना बनाई है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए जो अभियान सरकार चला रही है, उसको बल देने के लिए आपकी संस्था तेल संयंत्र भी लगा रही है। ये तिलहन किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। भाइयों और बहनों, आज यहां एक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ऐसे अनेक प्लांट्स बनास डेयरी देश भर में लगाने जा रही है। ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। गोबर धन के माध्यम से एक साथ कई लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। एक तो इससे गांवों में स्वच्छता को बल मिल रहा है। दूसरा, इससे पशुपालकों को गोबर का भी पैसा मिल रहा है। तीसरा, गोबर से बायो सीएनजी और बिजली जैसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं। और चौथा, इस पूरी प्रक्रिया में जो जैविक खाद मिलता है, उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और हमारी धरती मां को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रयास जब बनास डेयरी के माध्यम से पूरे देश में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होंगे, हमारी बहनें बेटियां सशक्त होगी। साथियों, गुजरात आज सफलता की जिस ऊंचाई पर है, विकास की जिस ऊंचाई पर है, वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है। इसका अनुभव मैंने कल गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में भी किया। गुजरात के बच्चों के भविष्य को
हमारी आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एक बहुत ताकत बन रहा है। हमारी सरकारी प्राथमिक शाला उसके लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूं, लेकिन गुजरात सरकार के निमंत्रण पर कल मैं विशेष तौर पर गांधीनगर में इसे देखने गया था। विद्या समीक्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है, टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन इस्तेमाल इसमें किया गया है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। आप सोचिए, पहले मुझे 1 घंटे के लिए ही वहां जाना था, लेकिन मैं वहां सारी चीजों को देखने समझने में ऐसा डूब गया कि 1 घंटे का कार्यक्रम मैं 2-2.5 घंटे तक वहीं चिपका रहा। इतना मुझे उसमें रुचि बढ़ गई। मैंने स्कूल के बच्चों से, शिक्षकों से काफी विस्तार से बातें भी की। बहुत से बच्चे अलग अलग स्थानों से भी जुड़े थे, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र। आज ये विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के 54,000 से ज्यादा स्कूलों से 4.5 लाख से ज्यादा शिक्षक और 1.5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों की एक जीती जागती ऊर्जा का, ताकत का केंद्र बन गया है। इस केंद्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस ऐसी आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र हर साल 500 करोड़ डेटा सेट का विश्लेषण करता है। इसमें असेसमेंट टेस्ट, सत्र के अंत में परीक्षा, स्कूल की मान्यता, बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़े कार्यों को किया जाता है। पूरे प्रदेश के स्कूल में एक तरह का टाइम टेबल, प्रश्न पत्र, चेकिंग, इन सब में भी विद्या समीक्षा केंद्र की बड़ी भूमिका है। इस सेंटर की वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 26% तक बढ़ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों से भी कहूंगा कि विद्या समीक्षा केंद्र का अवश्य अध्ययन करें। विभिन्न राज्यों के संबंधित मंत्रालय भी गांधीनगर आए, इसकी व्यवस्था का अध्ययन करें। विद्या समीक्षा केंद्र जैसा आधुनिक व्यवस्था का लाभ देश के जितने ज्यादा बच्चों को मिलेगा, उतना ही भारत का भविष्य उज्जवल बनेगा। મને લાગે છે કે હવે મારે તમારી જોડે આપણા બનાસના મૂળમાં વાત કરવી જોઈએ। સૌથી પહેલા તો જ્યારે બનાસ ડેરી સાથે જોડાઈને બનાસની ધરતી પર આવું, ત્યારે આદરપૂર્વક મારું પહેલું માથું નમે છે મુરબ્બી ગલબા કાકા માટે। અને આજે હું 60 વર્ષ પહેલા ખેડૂતના દીકરા ગલબા કાકાએ જે સપનું જોયું, એ આજે વિરાટ વટવૃક્ષ બની ગયું
અને બનાસકાંઠાના ઘેર ઘેર એણે એક નવી આર્થિક શક્તિ પેદા કરી દીધી અને માટે સૌથી પહેલા ગલબા કાકાને આદરપૂર્વક નમન. બીજા નમન મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનોને. પશુપાલનનું કામ મેં જોયું છે કે મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનો ઘરમાં જેમ સંતાનને સાચવે એના કરતા એ વધારે લાગણીથી એના પશુને સાચવે છે. પશુને ચારો ન મળ્યો હોય, પાણી ન મળ્યું હોય તો મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનો પોતે પાણી પીતા અચકાતી હોય છે. ક્યાંક લગ્ન માટે, વાર તહેવાર માટે ઘર છોડીને એક રાત બહાર જવાનું હોય તો બનાસની મારી માતાઓ બહેનો સગાવાલામાં લગ્ન છોડી દે પણ પશુને એકલા છોડીને ન જાય. આ ત્યાગ અને તપસ્યા છે અને એટલા માટે આ માતાઓ બહેનોની તપસ્યાનું પરિણામ છે કે આજે બનાસ ડેરી ફલી ફૂલી છે. અને માટે મારા બીજા નમન મારી આ બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનોના ચરણોમાં છે. આદરપૂર્વક એમને પ્રણામ કરું છું. કોરોનાના કાલખંડમાં પણ બનાસ ડેરી એક મહત્વનું કામ કર્યું. ગલબા કાકાના નામ પર મેડિકલ કોલેજ બનાવી અને હવે આ મારી બનાસ ડેરી બટાકાની ચિંતા કરે, પશુની ચિંતા કરે, દૂધની ચિંતા કરે, ગોબરની ચિંતા કરે, મધની ચિંતા કરે, ઉર્જા કેન્દ્ર ચલાવે અને હવે બાળકોના શિક્ષણની પણ ચિંતા કરે. એક પ્રકારે બનાસ ડેરી, બનાસકાંઠાની આ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ આખાએ બનાસકાંઠાના ઉજ્જવલ ભવિષ્યનું એક જબરજસ્ત ગતિશીલ કેન્દ્ર બની ગયું છે અને એના માટે પણ એક દીર્ઘદ્રષ્ટા વ્યવસ્થા જોઈએ. અને ગયા 7-8 વર્ષમાં જે રીતે ડેરીનો વિસ્તાર થયો છે અને મારો તો આમાં શ્રદ્ધા રહી હોવાના કારણે આમાં મારાથી જે બનતું હોય, મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે ખડે પગે ઉભો રહેતો હતો અને હવે તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો તો મેં તમને નથી છોડ્યા. તમારી સાથે રહીને તમારા સુખ દુઃખમાં ઉભો રહ્યો છું. આજે બનાસ ડેરી ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, છેક ઓડિશામાં સોમનાથની ધરતીથી જગન્નાથની ધરતી સુધી, આંધ્રપ્રદેશ, ઝારખંડ એમના પશુપાલકો માટે પણ એનો વધુને વધુ લાભ આપવાનું કામ કરી રહી છે. આજે વિશ્વના સૌથી મોટા દૂધ ઉત્પાદક દેશ આપણો ભારત, કરોડો કિસાનોની આજીવિકા જ્યારે દૂધથી ચાલતી હોય ત્યારે એક સાલમાં લગભગ ઘણીવાર આંકડા જોઈને કેટલાક લોકો, મોટા મોટા અર્થશાસ્ત્રીઓ પણ આની તરફ ધ્યાન નથી આપતા. આપણા દેશમાં વર્ષે 8.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું દૂધ ઉત્પાદન થાય છે. ગામડામાં ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ આ એનો નમૂનો છે. એની સામે ઘઉં અને ચોખાનું ઉત્પાદન એનું ટર્નઓવર પણ 8.5 લાખ કરોડ નથી. એના કરતા વધારે દૂધનું છે. અને ડેરી સેક્ટર એનો સૌથી વધારે લાભ નાના ખેડૂતને મળે છે. 2 વીઘા, 3 વીઘા, 5 વીઘા જમીન હોય, વરસાદનું નામો નિશાન ના હોય, પાણીનો અભાવ હોય, ત્યારે અમારા ખેડૂત ભાઈ દીકરા માટે જીવન દોયલું થઈ જાય ત્યારે પશુપાલન કરીને પરિવારનું પેટ ભરતો હોય છે. આ ડેરીએ નાના ખેડૂતોની મોટી ચિંતા કરી છે અને નાના ખેડૂતોની મોટી ચિંતા એ સંસ્કાર લઈને હું દિલ્હી ગયો તો દિલ્હીમાં પણ મેં
આખા દેશના નાના કિસાનોની મોટી મોટી જવાબદારીઓ માથે લેવાનું મેં કામ કર્યું અને આજે વર્ષમાં 3 વાર 2,000 રૂપિયા આ ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા મોકલી આપું છું. પહેલાના પ્રધાનમંત્રીઓ કહેતા હતા કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો 15 પૈસા પહોંચે. આ પ્રધાનમંત્રી એમ કહે છે કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો 100 પૈસા એ જેના ઘેર પહોંચવા જોઈએ એના ઘેર પહોંચતા હોય છે અને ખેડૂતને ખાતામાં જમા થતા હોય છે. અનેક એવા કામો આજે જ્યારે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતની કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ આ બધા સાથે મળીને કરી રહ્યા છે ત્યારે હું આ બધી મુવમેન્ટને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. એમનો જય જયકાર થાય. હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈએ બહુ લાગણીપૂર્વક એક વાત કરી પ્રાકૃતિક ખેતીની. બનાસકાંઠા એક વાત જો સમજી લે તો બનાસકાંઠા કોઈ દી એ વાતને છોડે નહીં, એ મારો અનુભવ છે. શરૂઆતમાં મહેનત પડે. મને યાદ છે વીજળી છોડો કહીને હું થાકી ગયો અને બનાસના લોકોને થતું કે આ મોદીને કે સમજણ નથી પડતી અને અમને કહે છે કે વીજળીમાંથી બહાર આવો અને મારો વિરોધ કરતા હતા. પણ જ્યારે બનાસના ખેડૂતો સમજ્યા અને મારા કરતા પણ 10 કદમ આગળ ગયા અને પાણી બચાવવાનું મોટું અભિયાન ઉપાડ્યું, ટપક સિંચાઈનો સ્વીકાર કર્યો અને આજે બનાસ ખેતીના ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી બદલાવ લાવવાનું કામ આજે મારું બનાસકાંઠા કરી રહ્યું છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે માં નર્મદા જ્યારે બનાસને મળવા આવી છે ત્યારે આ પાણીને પરમેશ્વરનો પ્રસાદ માનીએ, આ પાણીને પારસ માનીએ અને આ વખતે આઝાદીનો અમૃતકાળ, આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ છે. આઝાદીના 75 વર્ષ થયા છે. મારી બનાસ જિલ્લાને વિનંતી છે કે 75 એવડા મોટા તળાવ બનાવીએ બનાસની આ સૂકી ભટ્ટ જમીનમાં જ્યાં તણખલું પણ ન થતું હોય એવી ધરતી આપણે ત્યાં પડી છે. 75 એવડા મોટા તળાવ બનાવીએ અને 1 કે 2 વરસાદ આવે તો પણ પાણી ધડાધડ ત્યાં બહીને જતું રહે એવી વ્યવસ્થા કરીએ અને જો પાણી આ તળાવ ભરવાનું ચાલુ કરીશું તો મારો પૂરો વિશ્વાસ છે આ ધરતી પણ અમૃતમય બની જશે. અને એટલા માટે મારી અપેક્ષા છે કે આ જૂન મહિના પહેલા, વરસાદ આવે પહેલા આગામી 2-3 મહિનામાં જબરદસ્ત અભિયાન ઉપાડીએ અને 2023 15મી ઓગસ્ટ આ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ સમયમાં જ આ 1 વર્ષમાં એકલા બનાસ જિલ્લામાં ઓછામાં ઓછા 75 મોટા તળાવ બનાવીએ અને પાણીથી લબાલબ ભરીએ તો આજે જે પાણીની મોટી નાની તકલીફો પડે છે એમાં આપણે બહાર આવી જઈશું. અને હું તમારો અનન્ય સાથી છું. જેમ ખેતરમાં એક સાથી આપણું કામ કરે ને એમ હું તમારો સાથી છું અને એટલે તમારા સાથી તરીકે તમારી જોડે પડખે ઉભો રહીને કામ કરવા માંગુ છું. હવે તો આપણા નડાબેટમાં ટુરિઝમનું કેન્દ્ર બની ગયું. ભારતના બોર્ડર જિલ્લાઓનો વિકાસ કેમ થાય, ભારતની બોર્ડરને કેવી રીતે જીવંત બનાવાય એનું ઉદાહરણ ગુજરાતે પૂરું પાડ્યું છે. કચ્છની સીમા પર રણોત્સવ આખા કચ્છના સરહદને ત્યાં વસતા ગામોને આર્થિક રીતે ધમધમતા કરી દીધા. હવે નળાબેટ એનું જે સીમા દર્શનનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે એના કારણે અમારા બનાસ અને પાટણ જિલ્લાની સરહદોના છેવાડાના ગામો માટે પણ આ ટુરિઝમના કારણે આ ગામડા ધમધમતા થવાના છે. દૂર સુદૂર ગામડામાં
રોજીરોટીના અવસર પેદા થવાના છે. વિકાસ માટેના કેટલા બધા માર્ગ હોઈ શકે. પ્રાકૃતિક ગોદમાં ઉભારીને કઠિનમાં કઠિન પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે પરિવર્તન લાવી શકાય એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણી સામે છે. ત્યારે હું બનાસના નાગરિકોને, ગુજરાતના નાગરિકોને અને એક પ્રકારે દેશના નાગરિકોને આ અણમોલ રત્નો આજે એમના ચરણોમાં ધરી રહ્યો છું. અને આ અવસર માટે બનાસ ડેરીએ મને પસંદ કર્યો એ બદલ હું બનાસ ડેરીનો પણ આભાર માનું છું. મારી સાથે બંને હાથ ઉપર કરીને જોરથી બોલીશું, ભારત માતા કી. અવાજ જોરદાર જોઈએ હો આપણો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।